Hello everyone, once again welcome to the YouTube channel of Get Set Law by IMS. My name is Siddhant Singh, and guys, since the students have already been preparing for CLAT 2026, but there are lot many students who are aiming when they are in standard 11, but they want to write CLAT in the next year, that is CLAT 2027, which is probably going to take place in December 2026. Okay. So now the students have been asking ki, sir, we are in 11th standard and we want to start preparing for CLAT, but it's almost like 14 to 15 months from over here. What should be the roadmap we will going to take it forward? So in this video, it's explicitly for all the aspirants who is going to write CLAT next year, that is CLAT 2027. And if at any given point of time you are believing ki, sir, the video is very good, but we don't know where to go and check out the batches and anything, is there a possibility? Yes, there is a link which is provided in the description below. So please go check it out, get in touch with the counselors, one-on-one counseling, and just follow the steps. Okay. So basically what I've tried to do in this entire roadmap for the students who have already decided and enrolled in any of the batches, whether with IMS or some other institute, that sir, where we should start it from over here. It's been 1 or 2 months we have already been preparing, or maybe like 4-5 months back, but how it should start. So I've divided the entire your 15-month journey over here in 6 phases, 3 months ke 5 to 6 phases mein 2 to 3 months ka jo gap leke I've divided into that phases. To book a free one-on-one law counseling online or at any IMS center, check out the link in the description box or the pinned comment below. So I've started with the first phase over here. I'll just take up the pen and then we'll start discussing about it. So first phase majorly starting from September to November 2025, where I'll be focusing more on the foundation. Now at times student believe कि it's an entrance exam, so there is a course which the institute is going to cover it up. ये हमें पढ़ा देंगे और वो course और syllabus जैसी हो जाएगा, I am ready for CLAT. No, that's not the case, because my foundation is way different than what I have been studying in the school time. That means I need to develop certain habits which is going to be correlated with my preparation for CLAT. That's why my complete focus in this foundation has to be my reading habit. मतलब रेगुलरली बहुत सारे वर्ड्स वाले पैराग्राफ, पैसेजेस, आर्टिकल, माई जनरल नॉलेज, माई करंट अफेयर्स, माई लीगल अफेयर्स, इसका नॉलेज अपग्रेड करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स वाई आई वुड हाईली रिकमेंड टू स्टार्ट डेवलपिंग द रीडिंग हैबिट. सो माई प्रायर फोकस विल बी ऑन न्यूज़पेपर्स, the legal articles, and my weekly classes. So when I mention about the weekly classes, it means that whatever batch you are into, you have to rigorously follow that particular classes. जो भी पढ़ाया जा रहा है वो उस classes में cover up होना जरूरी है, and उसके साथ साथ जो भी material दिया गया, please keep on reading that, because my reading habit daily of 1.5 hour has to be there. ठीक है. Next, I need to start writing the topic tests as well, because right now exposing yourself with mocks, the full length mocks, may be difficult for you people, because you are in 11th right now. You have not been exposed to material like which have been there in CLAT. मतलब बहुत रीडिंग इंटेंसिव, क्योंकि स्कूल में भी इतना रीडिंग इंटेंसिव नहीं है. यू मस्ट हैव बीन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस वगैरह इन योर इंग्लिश पेपर, बट वो भी बहुत ही मिनिमल होता है, 200 to 250 वर्ड्स रहता है, उसके जॉनरास उतने नहीं होते. दैट्स व्हाई आई वुड हाईली रिकमेंड वॉट एवर टॉपिक्स जो क्लासेस में कवर हो रहे हैं या आगे जाके कवर होंगे इन दिस फेज, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर में मेजरली 1.5 मंथ्स और 2 मंथ्स बचे हुए हैं, इसमें आपको 2.5 मंथ्स 2 मंथ्स जो मैं बोल रहा हूँ, यू हैव टू कवर अप योर टॉपिक टेस्ट. सो वट एवर टॉपिक हैज बीन कवर्ड इन योर क्लास, लेट्स से इन योर इंग्लिश और इन योर लॉजिकल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग सिलॉजिज्म कवर हुआ है, तो जैसे ही वो टॉपिक इज बीन कवर्ड उसका टॉपिक टेस्ट दे दो. अब यू माइट बी वंडरिंग कि सर इन माई इंस्टीट्यूट टॉपिक टेस्ट इज नॉट देयर, सो डोंट वरी, come get in touch with our education advisors, they'll help you with the topic test हमारे यहाँ कहाँ पे कितना expanded form में दिया हुआ है. ठीक है. So to understand your current level, that becomes important. तो यहाँ पे हम थोड़ा time invest करेंगे, because that is my base. Base जितना strong उतना ही pillar उतना strong, and then building भी. ठीक है. Then daily 10-15 minute speed calculation drills करना पड़ेगा. Now this is an utmost important part, sir. Will it be going to be there in CLAT? क्या speedy calculation पे based question आएंगे? No, but your speed calculation will help you to solve the question in 7 to 8 minutes, which is going to be there in your quantitative techniques. तो ये एक ऐसी टेक्निक है या ऐसी स्किल है, अगर ये जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू गो एंड राइट अ जुडिशरी का पेपर या यूपीएससी का जो थोड़ा राइटिंग एबिलिटी वाला बेस्ड होता है, तो जब तक मेरी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं होगी आई विल नॉट बी एबल टू फ्रेम आंसर्स. सिमिलरली क्लैट में इट्स अ स्पीड इंटेंसिव पेपर, बहुत सारा रीड करना है, बट व्हेन इट कम्स टू क्वांट उसमें मुझे मेंटल कैलकुलेशन फास्ट करना है. तो इफ डेली फॉर द नेक्स्ट
12 months at least, if anyone is able to devote 10 to 15 minutes in the speed calculation. Now speed calculation, it's like पॉइंटिंग इट ऑन फिंगर्स पे कैलकुलेट करना या फिर मेंटल कैलकुलेशन. इट्स लाइक 23 इंटू 17 कितना होगा, मल्टीप्लाई किया माइंड में, आंसर बता दिया. सो दैट इज हाउ राइटिंग. अगर आप कॉपी में लिख रहे हो कि सर 23 इंटू 17 एंड देन यू आर डूइंग इट, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है. इनिशियली इट विल गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट दैट्स व्हाई योर क्लासेस डेफिनेटली हेल्प्स यू विद दैट. ठीक है, तो ये डेली इस पे टाइम इन्वेस्ट करना है. एंड देन करंट अफेयर्स के नोट्स मेकिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मंथली मैगजीन्स और वट एवर कंपेंडियम या बुक्स वट एवर यू हैव बीन रेफरिंग, उससे नोट्स बनाते चलो. अब द क्वेश्चन कम कि सर हमें इंस्टीट्यूट में बोला गया वी डोंट हैव टू मेक अप नोट्स या हमें न्यूज़पेपर से नोट मेकिंग इज नॉट नेसेसरी. येस, दैट इज व्हाट इज बीइंग सजेस्टेड, बट राइट नाउ इसकी प्रैक्टिस डालो सो दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो पिक करते बनेगा आपको. क्योंकि फॉर यू करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी 2026 विल बी इंपॉर्टेंट. तो अभी जो करंट अफेयर्स में चल रहा है, इफ आई एम एबल टू राइट समथिंग मेकिंग नोट्स, तो मेरे माइंड पे एक चार्ट बन जाएगा. बट फ्रॉम 2026 जनवरी ऑनवर्ड्स आपको नोट्स नहीं बनाने न्यूज़पेपर से. एंड ऑल्सो द बेस्ट पार्ट फॉर IMS गेट्स इट लॉज कि हमारा एक मंथली मैगजीन आता है, वो पूरा नोट फॉर्म में क्वेश्चंस वगैरह सब दिए रहते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू रिकैप. तो रिविजन भी आसानी से हो जाता है. व्हाटएवर द सिमिलर थिंग इज टेक अप इन द क्लासेस आल्सो. तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी देयर फॉर योर फर्स्ट फेज. नाउ वी मूव टू द सेकंड फेज. सेकंड फेज पे मुझे एक्सपैंडिंग द होराइजन पे आई टॉकिंग अबाउट. दैट मींस अभी तो मैंने आदत डाल ली कि मुझे रेगुलरली रीड करना है. नाउ जैसे ही वंस आई एम इनटू द हैबिट, लाइक इट्स लाइक मैं रेगुलरली सुबह उठने लग गया, अब आई विल स्टार्ट इंक्रीजिंग माय कैपेसिटी कि मैं 5 किलोमीटर चला गया, 10 किलोमीटर रनिंग चला गया, थोड़ा स्पोर्ट पे पार्टिसिपेशन हो गया या मैराथन में पार्टिसिपेशन कर लिया. अब मैंने एक्सपैंड किया अपने होराइजन को. सो दैट मीन्स रीड अ डाइवर्स जॉनरा बेस्ड रीडिंग लाइक साइकोलॉजी बेस्ड, फिलॉसफी बेस्ड, साइंस बेस्ड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स. ये सब कुछ आपको यू विल गोना गेट अप इन द एडिटोरियल सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर्स आल्सो. बट आई वुड हाईली रिकमेंड टू स्टार्ट रीडिंग सर्टन बुक्स या ऑनलाइन वेबसाइट जैसे लाइव लॉ होती है. इनमें थोड़े से ना मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड केसेस वगैरह वहां मिल जाएंगे, बट ये लीगल एस्पेक्ट हो गया. बट जेनेरिक एस्पेक्ट में बोलूंगा तो कुछ वेबसाइट्स रहती हैं. बट अगर आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर वी वांट टू नो दोस वेबसाइट, ड्रॉप इनटू द कमेंट्स, लेट अस नो, तो वील शेयर द लिंक ऑफ सर्टेन सजेस्टिव वेबसाइट. वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी ऑफ द वेबसाइट्स ओवर हियर, बट दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग इट टू द स्टूडेंट्स. बट एनी स्टूडेंट हु इज पार्ट ऑफ गेट्स इट लॉ, उसको डिफरेंट जॉनरा बेस्ड रीडिंग हमारे मटेरियल में मिल जाता है. तो वी डोंट हाईली रिकमेंड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर पार्ट ऑफ IMS, बट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ IMS, उन लोग के लिए वी कैन गिव सर्टेन सजेस्टिव वेबसाइट. बट तभी जब कमेंट आएगा मुझे नीचे कि येस सर वी नीड द लिंक ऑफ दोज वेबसाइट्स. ओके, तो इस पे रीडिंग इंटेंसिव होगा. तो क्या ये एग्जाम में हेल्प करेगा? सिमिलर पैराग्राफ वोंट बी देयर, बट द लैंग्वेज, द टोन ऑफ दीज पैराग्राफ्स विल बी इजी. क्योंकि अगर फिलोसफिकल बेस्ड कोई आर्टिकल आ जाता है एक पैराग्राफिकल फॉर्म में, आइदर इन इंग्लिश, या साइंस बेस्ड आ जाता है, हिस्ट्री बेस्ड, इट becomes at times difficult. Even बहुत सारे students को legal based articles भी आते हैं, but वो topic which is unknown to them, it becomes very difficult for them to read it. That's why we say keep on reading legal articles from newspaper and websites. तो इसीलिए अपने horizon को expand करने के लिए you have to give time to yourself. ठीक है, then practice with the editorial reading or either Get Set Law videos. So along with Get Set Law, so Get Set Law के channel पे we are already coming up with the 2 editorial videos on monthly basis. तो वहाँ editorial को read कैसे करना है, how questions can be framed, multiple things are already there. You can check up those videos which are already there in the playlist, and link भी मैं नीचे description में I'll gonna help you provide with that. ठीक है, तो editorial reading कैसे करना है वो भी यहाँ पे help हो जाएगा. तो पहले मुझे आदत डालनी है, I need to build up a habit for newspapers at least. चलो daily pick up important topics जो हो गए उसको करना है, not the state oriented news. But once I am already into the habit, then I'll start taking up the editorial part, which is starting majorly from December से February का phase होगा. Then beginning with the occasional mocks. Now December onwards majorly we have been asking students and suggesting students कि अगर you have been preparing for 3 to 4 months, now December would become a very good month to start with the mocks preparation, but not a daily or a weekly mock. It has to be 2 mocks per month would be more than sufficient, because I need to first understand कि paper का structure, 120 question, 120 marks, 120 क्वेश्चन इन 120 मिनट्स, आई हैव टू सॉल्व इट अप. क्या स्ट्रैटेजी होगा ये इनिशियली बता के कितना भी भेजेंगे, यू विल गोना एंड अप फेलिंग दैट, क्योंकि यू हैव नेवर बीन एक्सपोज्ड टू दोस मॉक्स. सो दैट्स व्हाई वी विल आस्क फर्स्ट स्टडी, इनिशियल 4 मंथ्स पढ़ लिया, देन स्टार्ट विद द मॉक्स. बट इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट हु इज जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ, December, January वुड बी द बेस्ट टाइम टू राइट द मॉक्स. गिव योरसेल्फ 1.5 month स्टडी करना, रीडिंग करना, हैबिट बिल्ड करना, एंड देन
goat for that particular mocks, ठीक है. Then continue daily math drill again and structured note making for current affairs. अब यहाँ पे structured note making चाहिए. तो पहले मैंने क्या बोला था that you have to begin making current affairs news, इससे बना लिया, but now you have to make structurally, क्योंकि अब हम कौन से मंथ पे एंटर हो गए, जनवरी फरवरी में हो गए. Now the current affairs becomes superly important for my tenure of the exam. Next I enter into the third phase, that is मार्च से लेके मई के बीच में. इधर पे आ जाता है सिर्फ structured practice पे, because in the previous 6 months 5 to 6 months I have already covered up my theory portion. मेरे basics clear हो गए, fundamentals हो गए, concept समझ में आ गया, the nature of questions and even some mocks. Now my complete focus would be on the practice. So reading comprehension में again editorial continuation, article reading has to be there. Article reading में मुझे comprehension पे focus करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because when I read an editorial या कहीं पे भी मुझे English article मिलता है, even it is in a form of any magazine form में भी मिलता है, when I read that thing I'm not able to see it the way which is going to come in the exam. That's why we highly recommend, एक already मैंने video भी record किया था, how to read editorials and how to read a newspaper. It's already there, go check it out. मैं link इसका भी provide करा दूंगा, so don't worry about it, ठीक है. link अगर नहीं मिलता है comment section में जरूर बता देना, sir we want the link for that also video, तो मैं वो भी provide कर दूंगा, but I'll surely give it into the description कि editorial को कैसे read करना है, because I just don't have to read it. सर ने बोला read करना है so I'm reading it. No, it should not be that way. Rather than मुझे editorial में check करना है inference क्या होगा, authors का क्या argument हो सकता है, क्या strengthening हो सकता है, क्या weaken, ये चीजें भी मुझे identify करनी, vocabulary के pointers, मतलब those terminologies, high frequency words I have to mark it up. तो that is what reading comprehension पे focus रहेगा. Next is current affairs. So weekly reflection on legal and the current affairs linkages. I have to keep on doing that thing which I have already been doing. जनवरी से structure note making हो गया था, but now focus has to be on what is happening in the newspaper. जो entire geopolitics में हो रहा है वो सब कुछ मुझे पढ़ने की जरूरत है. Next we talk about logical reasoning and maths. So now I have to focus more on the time based practice for reasoning and the calculation, because अभी तक my base was there, speedy calculation हो गया, comprehension has happened, now the focus into on the practice. तो अब logical reasoning and maths में I have to make it a time bound, कि I have to read it, comprehend and give the answers. Similarly speedy calculations हो जाएंगे. अगर 5 months तक वो daily 10-15 minutes का speed calculation का drill कर लिया, it will be beneficial for you people. Next is mock test. तो I've already told कि regular mocks लिखना चालू करना पड़ेगा, but it is 1 in every 2 weeks with detailed analysis. Now how to analyze mocks, the video has already been there on the portal, but when you will start writing the mocks, we will definitely come up later on for specifically for CLAT 2027, but वो December के बाद ही रहेगा, because now the focus is for the CLAT 26 students. But you can still go and check कि mock में जब आता है तो analysis कैसे करना है, but I would highly recommend अभी मत देखना, क्योंकि mock दिया नहीं है, it would be difficult, but तब हमें ये चीज़ important बन जाएगी. So that is where अभी practice oriented हो गया, reading, current affairs, speed, and then my mock and the detailed analysis. Now coming to the most important phase, क्योंकि यहाँ पे तो चलो मेरी summer vacations and everything is there, I just entered 12th, तो मैं बहुत ज़्यादा 12th से इतना डरा नहीं हूँगा, तो my focus would be completely on CLAT sometime. But यहाँ पे problem आ जाएगी, because my midterms are going to start, my half yearlies or whatever, my pre-boards are there, and sir holidays भी हैं, multiple balancing करना पड़ रहा है, तो it would be superly difficult for the students to do that. But उसके लिए ना मैंने वीडियो के एंड में एक सोल्यूशन दिया है, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज स्टूडेंट्स वॉच दिस वीडियो एंड तक, क्योंकि और ऐसा नहीं कि एंड में ले जाके देख रहे हैं, नहीं, वो एंड में बिल्कुल है, क्योंकि मैंने वहां स्टेप बाय स्टेप पॉइंटर्स दिखे कि हमें क्लैट 27 पे फोकस में क्या ध्यान रखना है, व्हाट नीड्स टू बी डन, पहले से मुझे क्या जानना जरूरी है, इट बिकम्स डिफिकल्ट, ठीक है. तो अभी वो एंड में देखेंगे. सो नाउ विल फोकस ऑन द रिगरस ट्रेनिंग. सो आई हैव टू मूव टू लॉन्गर टफर रीडिंग, एसेस, इंटरनेशनल ओपिनियन पीसेस एंड सो ऑन. तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ मार्क्स भी डेफिनेटली बढ़ जाएगा, स्कोर्स भी कहीं ना कहीं मैप हो जाएंगे, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट लाइक 10-15 मार्क्स दे दिए होंगे इन दो प्रीवियस क्वार्टर में. तो अब मुझे अपनी रीडिंग को थोड़ा सा और टफ बनाना पड़ेगा, मे बी लाइक रीडिंग 2 एडिटोरियल्स टुगेदर, तो वो टफ फेज में आ जाएगा, तब भी हम आपकी हेल्प करेंगे. नाउ द कंसोलिडेशन ऑफ करंट अफेयर्स फॉर द पास्ट 6 months नीड्स टू बी डन. तो यहाँ पे ऑलरेडी स्कूल का प्रेशर होगा, मिड टर्म्स का होगा, स्कूल टेस्ट का होगा, वहाँ पे आपका प्री बोर्ड्स भी कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स के हो रहे हैं, इस साल हुए थे, तो जैसे कि सर 2 प्री बोर्ड हो रहे हैं अभी के टाइम में भी, एंड देन
दिसंबर में भी होने वाला है. So this is what a pressure happens onto the students when they are in 12th. But you have to balance it up. जो भी current affairs का जनवरी से अगर structurally notes बनाने चालू कर दिए थे तो it would become easy for you to take up for those current affairs in the previous 6 months. उसका क्योंकि मुझे जैन से लेके जून तक का पूरा कंप्लीट करना है, अगस्त मंथ में रिविजन पूरा चालू करना पड़ेगा बैकवर्ड बेसिस पे. नाउ आई हैव टू फोकस अगेन ऑन दी सेक्शनल एंड द फुल लेंथ टाइम टेस्ट. तो सेक्शनल टेस्ट तो मैं दे ही रहा था. नाउ देयर विल बी एड ऑन टेस्ट व्हिच विल गोइंग टू बी प्रोवाइडेड ऑन द IMS गेट सेट लॉ पोर्टल. बट इवन इफ इन योर इंस्टीट्यूट वहाँ मल्टीपल टेस्ट होंगे उनको दो. फोकसिंग ऑन सेक्शनल टेस्ट क्योंकि मैंने मॉक्स दे दिए. नाउ आई विल बी एबल टू एनालाइज एंड सी कि हाँ दीज आर द सेक्शंस व्हिच आई एम मेरे मार्क्स गिर रहे हैं तो मैं सेक्शनल टेस्ट पे आ गया. बट फुल लेंथ मे बी लाइक इफ यू हैव अ कोर्स फेयर और अ मॉड्यूल उसका पूरा टेस्ट भी फुल लेंथ टाइम टेस्ट भी आपको चेक करने पड़ेंगे. एंड देन यू हैव टू गो फॉर इट एंड चेक योर परफॉर्मेंस कि मुझे कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है कि नहीं. वहां पे मार्क्स नहीं देखने, वहां पे देखना टाइम बेस्ड प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं. देन नाउ आई हैव टू टेक 1 मॉक पर वीक होगा एंड ट्रैक योर एक्यूरेसी, योर स्कोर्स एंड गेट इन टच विद योर मेंटर्स. जैसे ही ये फेज खत्म होगा मेरा एक फाइनल लैप आ जाएगा विच इज माई लास्ट फेज. मतलब बेसिकली तो 5 फेज ही थे बट ये लास्ट फेज मीन्स मेरा एग्जाम मंथ जा रहा था तो इसलिए मैंने कहा था कि 5 फेजेस मेजरली बट 6th फेज एक अलग चला गया था इसलिए मैंने 6 फेजेस कहा था. With just 3 months remaining before the exam, तो complete focus चला जाएगा. लास्ट में is the revision मेजरली करंट अफेयर्स पे. बट यहाँ पे क्या होता है वी ऑलवेज सजेस्ट कुछ भी नया नहीं पढ़ना है. सो वी डोंट हैव टू कीप ऑन लर्निंग एनी थियोरी. कुछ भी मुझे याद नहीं करना है. वट एवर आई हैव स्टडीड आई हैव टू जस्ट रिवाइज दोस कॉन्सेप्ट्स अगेन अगर इफ आई एम वीक इन सम पार्ट. नहीं तो प्रैक्टिस इज व्हाट यू हैव टू डू. बट करंट अफेयर्स का रिविजन फॉर द पास्ट 11-12 मंथ्स वो चला जाता है. स्ट्रेस ऑन द लास्ट 6 to 8 मंथ्स हैव टू बी देयर इन डिटेल. देन यहाँ पे मुझे स्ट्रैटेजी रिफाइन करनी पड़ेगी. रिफाइनमेंट मीन्स कि अब मुझे पता चल गया कि चलो आई हैव बीन राइटिंग मॉक्स, माय स्कोर्स आर गेटिंग डाउन. तो व्हाट आर माय वीकर सेक्शन. तो मुझे उन वीकर सेक्शंस पे भी काम करना पड़ेगा. आज के टाइम पे भी अ लॉट मेनी स्टूडेंट्स फॉर क्लास 26 दे आर नॉट फोकसिंग ऑन वीकर एंड दे आर सेइंग कि सर इतने महीनों में नहीं हुआ तो हाउ विल आई बी एबल टू कवर दैट अप. बट दिस बिकम्स अ मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम बिकॉज आई कंसिडर कि चलो 5 में से 2 सेक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, 2 माइल्ड से और एक बहुत ही वीक है. तो उस वीक पे अगर अभी इस फेज में काम कर लिया तो इट विल गोइंग टू गिव 5 to 6 मार्क्स एक्स्ट्रा. जैसे मेजरली क्वांट स्टूडेंट्स के लिए बन जाता है या लॉजिकल रीजनिंग की सर इट्स बिकमिंग वीक आई एम नॉट एबल टू स्कोर मार्क्स. सो एटलीस्ट उतना कर लो कि एग्जाम में एक सेट तो सॉल्व कराओ क्वांट में या फिर हाफ ऑफ द पेपर फॉर लॉजिकल इज बीन डन. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प एंड विच इज बीइंग आइडेंटिफाइड इन द मॉक्स. देन लास्ट में 2 मॉक्स पर वीक होगा तो डेफिनेटली आपका स्केड्यूल वैसे ही बनाया गया कि लास्ट फेज में कि आपको मल्टीपल मैराथन सेशंस, प्रैक्टिस क्लास, मास्टर क्लास, मल्टीपल सेशंस, स्प्रिंट सेशंस, लॉट मेनी सेशंस हैपन फॉर द स्टूडेंट जिसमें टाइम बेस एंड इवन सर्टन सिचुएशंस लाइक बूट कैंप मतलब ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जहाँ पे 4-5 घंटे की लगातार बैक टू बैक प्रैक्टिस भी होती है. सो दैट इज व्हाट वी टेक केयर फॉर दी ऑनलाइन एंड दी ऑफलाइन स्टूडेंट्स. अब जैसे ही फाइनल एग्जाम के टाइम आएंगे दिसंबर में जो कि मेजरली एक्सपेक्ट है कि अगेन जैसे इस साल हुआ था फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर ही होगा 2026 में. सो आई हैव टू हैव अ लाइट रिव्यू ऑफ द notes, then mocks in every 3 to 4 days for the rhythm. And what is my focus has to be maintaining my confidence, my stamina and the time management because this becomes superly important for the student. तो यहाँ पे एक चीज आ जाती. बट जैसा कि मैंने अपने 6 फेज खत्म हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंड में आई हैव नोटेड डाउन सर्टेन पॉइंटर्स दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो आई वुड हाईली रिकमेंड ऑल द स्टूडेंट्स एंड इफ द पेरेंट्स आर ऑल्सो वॉचिंग प्लीज give time to this particular part of the video because this is what I have noted down on the basis of past experiences what has derailed students preparation when they have been preparing for like 8 to 10 months and more. ठीक है. So first ये मान के चलो right now you are sitting in the month of September or October whenever you watch the video, please maintain a proper balance of your school, your CLAT preparation and the coaching like कोई accountancy, economics or maybe some maths की कोई school के लिए tuitions coaching जा रहा है. Please you have to make a proper balance out of it. I know टाइमिंग क्लैश होते हैं, बाद में भी प्रॉब्लम आती है बट यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू दिस. This is a message to all the parents कि if your child is able to get 75 to 80% in 12th, that is a good percentage. But if he or she is able to crack CLAT on the basis of the caliber, then definitely 75-80% is a good score, मतलब good percentage in 12th. But also one more message to the parents कि
ये तो मैंने ऑन एन एवरेज स्टूडेंट का कहा है, बट इफ योर चाइल्ड, इफ योर किड इज वेरी मच बोलते हैं ना सिंसियर इनफ है दैट ही और शी विल गोइंग टू सॉल्व, तो जैसे दिसंबर में योर क्लैट एग्जाम हैपेंस नेक्स्ट ईयर, उसके बाद 2.5 months में यू विल बी easily able to crack either commerce or humanities and get 85 to 90%. So don't be scared of that. But ये पूरी journey में it will going to become difficult इन तीनों पे बैलेंस करना. But अगर किसी का ये नहीं है तो it becomes very easy स्कूल और क्लैट को बैलेंस करना है. So I would highly recommend starting से keep your attendance proper 80-85% रखो. That is will help you. So keep your this is a message for the students. Keep your parents and your school teachers informed. What is your plan? Plan means कि सर मैं क्लैट दे रहा हूँ, I'm preparing for A-Led, I'm preparing for SLAT or law entrance exam. So they should be aware and they should also know कि हाँ यार ये एक entrance exam के लिए serious है, तो they will going to give the support. Equally teachers and parents who are watching this video, please be with your child for the next 15 months because 15 months जल्दी निकल जाएंगे, we'll never come to know and they will going to be वो सब mix match हो जाएगा. ठीक है. Current affairs is your daily work. Please keep this in mind. आएगा जनवरी ऑनवर्ड्स, आई नो, बट अभी से पढ़ेंगे तो इट विल गोइंग टू बिकम अ हैबिट. मेक इट अ हैबिट, दैट्स व्हाई आई वांट. ठीक है. रीडिंग इजंट ऑप्शनल, इट्स नॉट एट ऑल. जैसे रूटीन है, सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, तो यू हैव टू रीड फॉर एटलीस्ट 45 minutes to an hour डेली. अब रीडिंग में क्या करना है वो आपके ऊपर है. रिकमेंडेशन है, प्लीज स्टार्ट रीडिंग एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर विद अ टॉपिक विच यू लाइक, बट डोंट गो फॉर बॉलीवुड न्यूज, डोंट गो फॉर स्पोर्ट न्यूज, डोंट गो फॉर एनी ऑफ द न्यूज विच डज नॉट हैव एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी. ठीक है. अंटिल इट्स हैविंग अ बिगर इम्पैक्ट. जैसे इंडियाज गॉट लेटेंट का एक न्यूज था विच इज इम्पैक्टिंग द सोसाइटी एज अ होल. पूरे कंट्री में दे वर टॉकिंग अबाउट अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट के अंदर था, तो वो पढ़ना जरूरी हो गया था. तो दैट वाज टॉक ऑफ द टाउन. तो बस सोशल मीडिया का न्यूज वगैरह आई वोंट रिकमेंड, बट आई वुड रिकमेंड जो न्यूज़पेपर का न्यूज है, जियो पॉलिटिक्स का न्यूज है, एनी अमेंडमेंट रिलेटेड न्यूज, एंड इवन इक्वली फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो कि वट एवर न्यूज यू कम अक्रॉस, यू कीप ऑन शेयरिंग दोज इनसाइट्स विद देम सो दैट इट बिकम्स एन इक्वली बैलेंस एंड an equal effort towards the exam. Now classroom का theory, whatever you are doing in your classes, whether online offline, it's completely for your knowledge. School में जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो तो marks oriented we are doing, we all know that thing. ठीक है. It has been happened, movies भी बन गई, पता है. बट यहाँ पे जो आप थ्योरी पढ़े, इट्स ओनली फॉर योर नॉलेज. इस पे लिखने के लिए आंसर्स वोंट गोइंग टू कम, यू नीड टू नो दोस कॉन्सेप्ट, बट एक्चुअल लर्निंग इज हैपन थ्रू दी प्रैक्टिस ओनली, बिकॉज पैराग्राफ इज गोइंग टू बेस्ड ऑन अ टॉपिक विच यू माइट हैव नोन और विच यू माइट हैव नॉट नोन. बट अगर मुझे नोन होगा तो मैं कॉम्प्रिहेंड इजीली कर पाऊंगा, नॉट नोन होगा फिर भी मुझे वो सॉल्व करना पड़ेगा व्हेन इफ इट इज गोइंग टू बी देयर इन माय मॉक. तो इसीलिए माय माइंड हैज टू बी रेडी फॉर इट. ठीक है. सो इसीलिए आई हैव टू कीप माय अप्रोच टुवर्ड्स क्लैट एज अ डिफरेंट माइंडसेट, बिकॉज ये स्कूल एग्जाम की तरह नहीं है कि ये 25 चैप्टर्स हैं, आई विल रीड इट देन आई विल गो एंड गिव द एग्जाम. इट हैज नथिंग टू डू विद दैट. व्हेनेवर यू जॉइन अ बैच, इफ एनी ऑफ द क्लासेस हैव ऑलरेडी हैपेंड, डोंट वरी अबाउट दैट कि सर क्लासेस हो गई, मेरा कोर्स छूट गया. ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज इट इज कंप्लीटली अ नॉलेज बेस्ड, अ स्किल बेस्ड टेस्ट. और अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड subscribe to our channel, and thank you so much guys for watching the video till the end. कोई भी question for specially for CLAT 2027 aspirants, अगर कोई भी question है, doubt है, please drop into the comments and let us know. Till then, सिद्धांत सर signing off. जल्दी वापस मिलेंगे.